ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भजहुरे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विन्दरे अभयचरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरोहु भव निन्दुरे भजहुरे मन श्रीनन्दनन्दन भय चरणर विन्दरे सीतातप बलिदान एदि गामिनी यागिरे विफल सेविनु कृपण दुराजन चपल सुखलभ लागिरे भजहुरे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विन्दरे ए धनयोबन पुत्र परिजन एकमाल एतिकी आचे परा तीरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीतिरे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विन्दरे श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासा अभिलाष्य रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विन्दरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, very nice, Beta, very nice. Then you can also sing Hare Krishna also to help with it, you know. You can sing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Okay. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Thank you, beta. Very nice. Okay, Hari Bo. Thank you. Right. Hare Krishna. Hey, Thank you. Prabhupada, Nanda Prabhuji, Dandavat Pranams, all good Shri Prabhupada. Prabhuji, can sit on video. Prabhuji, are you able to hear us? Prabhupada, Nanda Prabhu? Hare Krishna. Prabhu, I think you are muted yourself, I believe. No, he's not on mute, but we cannot hear him. Yeah, we are not able to hear you, Prabhuji. No, Prabhu, no audio input. Can you please try joining from a Krishna, you can hear me? Yes, Hari Bo. Thank you very much. You can hear? Yeah, now we are able to hear you. Thank you very much. Hare Krishna, Mataji. Now we have this Prabhupada Prabhu who left us last year, and after 1 year, we are seeing him in the action, back in action. Really, actually, okay, through Corona, at least you don't have to come to Abu Dhabi, and he is just actually through this facility, we are having Cisco facility in which we are able to connect all the people, all our people we are getting as their association. So thank you very much, Prabhu, for taking. Thank you. Hare Krishna. Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Okay, Prabhu, I will not waste much time. If you can start, Prabhu. Thank you very much. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. You can sing Radha Jai Radha Madhav Prabhu. Yes, Prabhu. Sure, sure. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Radha Madhav Ji ki Jai Jai Shri
श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हम लोग ध्यान श्लोका करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आज भगवद गीता का क्लास करेंगे। अध्याय दूसरा है और श्लोक नंबर 2.36, 2.37 एंड 2.38 है। तो आपके पास भगवद गीता है तो आप तैयार रख सकते हैं या फिर मोबाइल पे भी देख सकते हैं। ओम अज्ञानविरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता से दूसरा अध्याय गीता का सार वो पढ़ रहे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे। जिनके पास भी भगवद गीता है वो खोल सकते हैं और मोबाइल में भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा। 2.36। हरे कृष्णा। अवाच्य वादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। शब्दार्थम अवाच्य कटु, वादान मिथ्या शब्द, च भी बहुन अनेक, वदिष्यन्ति कहेंगे, तव तुम्हारे, अहिता अहिता शत्रु, निंदन्तः निंदा करते हुए, तव तुम्हारी, सामर्थ्यम सामर्थ्य को, ततः उसकी अपेक्षा, दुःखतरम अधिक दुखदाई, नु निस्संदेह, किम और क्या है। ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। श्लोक नंबर 37, 2.37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। शब्दार्थ अतः मारा जाकर, वा या तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा, मोक्ष से भोगोगे, महिम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए,
कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। ट्रांसलेशन बाय जीवानंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य पकड़ भाई जीवानंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी जा गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। श्लोक नंबर 2.38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। शब्दार्थ सुख सुख, दुखे तथा दुख में, समय समभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभौ लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए, युज्यस्व लोग लड़ो न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। ट्रांसलेशन बाय जीवानंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य पकड़ भाई जीवानंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन या फल नहीं होता। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवतम में 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षिभृता तनूणाम पितॄणाम न किंकरो, देवर्षिभृता तनूणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणीं च राजन्, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हो, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो प्रभु जी और माता जी, हम लोग दूसरे अध्याय में है, जो गीता का सार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारे महाराज महाविष्णु गोस्वामी महाराज हमें कैसे कहते हैं, ये अध्याय तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, पूरा पाठांतर होना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने नीचे गिरे कि हम लोग इतना पाठांतर भी नहीं कर पाते हैं। पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन पाठांतर नहीं करते हैं। महाराज ने, मुझे याद है, ये अध्याय का जो दूसरा अध्याय का 55 से लेके लास्ट तक जो श्लोक है, वो हमारे कृष्ण किंकर से पाठांतर करके लिया था और उससे बुलवाया था एक श्लोक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अभी अर्जुन की स्थिति ऐसी है, जो अभी युद्ध में खड़े हैं, युद्ध के लिए खड़े हैं कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण भगवान उनके पार्थ सारथी हैं, लेकिन सारथी के साथ होने पर भी जो उपदेश भगवान देते हैं उनको, फिर भी वो अर्जुन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति क्या है, उनकी विदा हो गई है, डबल माइंडेड हो गई है उनकी स्थिति। तो वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप पहले वाले अध्याय में जाएंगे, जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो भी, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि
हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा में सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन को चिंता है कि जैसे वो कृष्ण हमारा जो वर्ष है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। तो अर्जुन कहते कि अगर मैं पाप का धनी हो जाऊंगा तो मैं नरक में वास करना मुझे पड़ेगा। तो वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो तो अर्जुन की जो दयाद्र बुद्धि है शत्रु के लिए वो उत्पन्न हुई है कि मैं अपने सामने जो खड़े हैं, जो मेरे गुरुजन है, मेरे आप्त है, मेरे स्वकीय है, उनकी हत्या मैं क्यों करूं? अगर मैं उनकी हत्या करूंगा तो मुझे वो पाप रहेगा और मैं स्वर्ग का भागी नहीं होगा, मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं कि यदि माम प्रतिकार अशस्त्रम शस्त्र प्राणय, भगवद गीता का पहला अध्याय का 45वां श्लोक है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र प्राणय धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र जो शस्त्रधारी है और युद्ध के लिए आए, वो मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन की स्थिति ऐसी है, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं निहत्ता हूं भी हूं या फिर मुझे पर किसी ने हमला किया कौरव ने, तो भी मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे लिए श्रेयस्कर रहेंगे। तो उनकी बुद्धि युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अब उनको भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन तो ऐसे क्यों, तुम्हारी जो व्यवहार है ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, और जो तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हारा बल है, तुम जो परम तप है, उसके लिए तुम्हारा उपहास करेंगे, और तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये दुख की बात है, तुम क्षत्रिय होकर भी युद्ध करने के लिए तैयार ना हो, ये बहुत दुख की बात है। तो क्षत्रिय कौन है, ये हमें देखना चाहिए। चारों वर्ण में जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में क्षत्रिय दूसरा वर्ण है। और इस वर्ण के लोगों का काम क्या है, कार्य का है कि देश का शासन करें और शत्रु से उनकी रक्षा करना है, उनका उनका कार्य है। तो क्षत्रिय का जो मतलब है, जो प्रभु जी ने लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे श्रीनिवास प्रभु जी ने, क्षत्रिय का मतलब है जो दूसरों की क्षत से बचाए, यानी कि जो क्षत और आघात से प्राण देने वाला है वो क्षत्रिय होता है। तो क्षत्रियो जो हमें दूसरे से बताया, हमारे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कहा है, ब्रह्मणस्य मुखमासितम बाहु राजन्य कप्तः अरुयत तद्वेश्य पद्म्या शूद्रो आजयता। इसका मतलब है ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुख से हुआ है, क्षत्रियो का बाहु से हुआ है, वैश्य का जांग से हुआ है और शूद्र का पांव से हुए बताया गया है। तो क्षत्रिय सा बाहु, जो बाहु स्फूर्ते हैं उनके, जब भी वो युद्ध करने के लिए जाते हैं, उनके जो बाहु है वो स्फूर्ते है युद्ध करने के लिए कि मैं युद्ध करूंगा, मुझे युद्ध करना है, मेरा कार्य है, मेरा यह धर्म है। तो ये क्षत्रिय धर्म का पालन करना क्षत्रियो का काम है। लेकिन अगर अर्जुन ऐसे ही बैठा बैठा है रथ पे, निराश होके, उदा मनस्थिति में, उसकी मनस्थिति बहुत बिगड़ गई है और वो सारे देख रहे हैं, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, सारे उनके भाई हैं, बंधु है, सगे हैं, उनको मारने के लिए वो तैयार नहीं, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। तो उन्हें अभी कह रहे कृष्ण भगवान की बात की युद्ध करो। मनुस्मृति में क्या कहा गया क्षत्रियो के बारे में कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार करे। तो उनका व्यवहार भी कैसा होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए। अगर शत्रु भी है कि उनका व्यवहार कैसे उचित होना चाहिए, और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रिय धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियो का परम कर्तव्य है। जबकि अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है, तभी द्रौपदी क्या करती है, उचित व्यवहार करती है उससे, उसे कहती है ब्राह्मण पुत्र, उसे छोड़ दो, उसे मारना नहीं चाहिए। तो ये उचित व्यवहार क्षत्रिय धर्म है। भगवत गीता का जो श्लोक है 18वां अध्याय का 18.43, शौर्यम तेजो धृतिम द्राक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानवीश्वर भावश्य क्षत्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रम कर्म स्वभावजम, उनका स्वभाव क्या है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, शास्त्र धर्म का पालन करना है, युद्ध करना है।
इसमें कहते हैं कि जो शूरवीरता है, तेज है, धैर्य है, युद्ध में चतुरता है, युद्ध से न भागना, दान करना है, सेवा करना है, शास्त्रानुसार राज्य शासन करना है और पुत्र के समान अपने प्रजा का पालन करना है, ये सारे क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य या कर्म कह गए हैं। तो इसमें दिया है भगवत गीता का 18वां जो अध्याय, बहुत सन्यासियों के बारे में, उसमें कितने उसके वर्णन किए कि क्षत्रिय धर्म में क्या करना चाहिए। क्या अर्जुन ये सब भूल गया है? क्या अर्जुन की स्थिति ठीक नहीं है? अर्जुन क्या करना चाहता है? अर्जुन की द्विधा मन स्थिति भगवान जान गए हैं। वो जानते हैं कि ये युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। चलो हमें उसको युद्ध के लिए उकसाना है, उसको बोलना है कि युद्ध करना है, उत्तिष्ठ परम तप, उसको याद दिलाते हैं तुम परम तप मतलब शत्रु को ताप देने वाले हैं। और ऐसी द्विधा मन स्थिति में तुम अगर रथ पे बैठे रहोगे तो युद्ध का क्या होगा? हम लोग युद्ध भूमि में है, युद्ध के सामने शत्रु खड़े हैं और इसी युद्ध के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। देखो युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, मारे भी जा सकते, बच भी सकते हैं, लेकिन अब तुम मारे जाएंगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग पाओगे। अगर तुम युद्ध जीतते हैं तो पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारे सामने है, तुम इसको भोग कर सकते हैं। इसीलिए संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। परम तप उसमें क्या कहे, भगवान क्या कहते हैं वो श्लोक में? भगवान कहते हैं उठो, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम अगर 2.38 में कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार करे बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। तो ये युद्ध लाभ और पराजय के लिए नहीं है, लाभ अलाभ इसके लिए नहीं है, जय पराजय उसका मत ध्यान देखो। तुम अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। भगवान कर्म के लिए उसके लिए कह रहे हैं कि अपना कर्म क्या है? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम कर्तव्य करो तो ही वो तुम्हारे लिए फायदे के लिए है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं रहेगा, क्योंकि अर्जुन डर रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा, मैं ये करूंगा तो पाप लगेगा, मैं इसको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो ये डरने की बात नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि अर्जुन के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। और ये युद्ध जरूरी है, महाभारत का युद्ध जरूरी है, क्योंकि जो कौरव का जो व्यवहार था वो निश्चित ही धर्म के विरुद्ध था और उसको धर्म का बचाने के लिए अर्जुन को ये धर्म युद्ध करना बहुत ही जरूरी है। इसमें भगवान की इच्छा है मतलब क्या है? क्योंकि अगर अर्जुन कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का सखा है, वो जानता है, कृष्ण के व्यवहार को जानता है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहते हैं। भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठ हो जाता है, सुख और दुख के लिए नहीं परवाह करता है, क्योंकि वह अत्यंत धैर्यवान होता है। और भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, वो चिंता नहीं करता है। कृष्ण भावनात्मक अगर कार्य मतलब कृष्णा की आदेशानुसार अगर हम लोग कार्य करते हैं, कृष्णा की इच्छा के अनुसार हम लोग अगर कार्य करते हैं, तो वो कृष्ण भावनामूर्त में कार्य होता है। और जिस उस कार्य में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं होता है, वो हमें कार्य करते ही रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि परिस्थिति कैसी हो, मैं कैसे बिहेव करूंगा, मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं, हमें वो कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारी ये दिव्य चेतना है, कृष्ण भावना में क्या है, वो दिव्य चेतना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक के हृदय में बसे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में बसे हुए, और वहां से हमें आज्ञा मिलती है, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती है। तो दिव्य चेतना यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, कृष्ण के लिए किया जाए, अपने लिए खुद के लिए करने की जरूरत नहीं है। अभी ये पुरुषोत्तम महीना शुरू हो गया है, जो अधिक मास है, जिसमें कितना महत्वपूर्ण महीना है। बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, ईमेल्स में आते हैं, आप देखते होंगे कितना महत्वपूर्ण महीना है अधिक मास में। क्या क्या करना है, भगवत गीता का 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, जगन्नाथ अष्टकम, सारे अष्टकम पढ़ने चाहिए, श्लोक पढ़ने चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जो महीना है, जो हमें दिया है अभी भगवान ने, उसका हम लोग उपयोग करना चाहिए। हमारी दिव्य चेतना हमें जागरूक करे, ट्रांसेंडेंटल जो है हमें जागरूक करनी चाहिए, और सारे कार्य हमारे कृष्ण के निमित्त किए जाने चाहिए। इसीलिए अगर ये हम लोग कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, तो हमें जो भौतिक कार्य है, जो मटेरियल एक्टिविटीज है, उसका कोई हमें बंधन या फल नहीं मिले होगा। हम लोग उस बंधन में अटकेंगे नहीं। अभी सामने कौरव है, कौरव देख रहे हैं अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण जानते हैं कि उनका अधःपतन होना निश्चित है। ये कृष्ण की इच्छा है। भागवतम में एक श्लोक है 11:5-15, 11.5.15, द्विषन्तः परकायेषु स्वाम स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबंधेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतंती अधः। अर्थात ये जो हमारा शरीर है वो क्या है, मृतक शरीर है, डेड बॉडी। इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। ध्यान रहे प्रभु जी माता जी, इसके संबंधी जो शरीर के संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। और जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गाढ़ बांधते हैं, प्यार करते हैं उनको शरीर से, और हम लोग बन जाते हैं, और दूसरों के जो शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधःपतन निश्चित है। तो सामने वाले के हृदय में भी भगवान बैठे हैं, उसके बारे में चिंता नहीं करते, वो द्वेष करते हैं उनका, तो उनका अधःपतन निश्चित है। नहुष राजा जो है, अपनी कथा सुनी होगी, छोटी सी कथा है। नहुष राजा जो क्षत्रिय, बहुत ही उदार, दानी और कर्तव्यशील और बहुत ही शौर्यवान, तो उस राजा नहुष राजा को एक बार स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उनको इंद्र पद प्राप्त हुआ। जो पहले वाले इंद्र है, इस कारण से उन्हें छुपना पड़ा। तो उन्होंने देखा ये बहुत ही सुंदर राज्य है, स्वर्गलोक, और उन्हें बहुत पसंद आया। तो एक बार उन्होंने शची देवी को देखा, जो पहले वाले इंद्र है, उनकी पत्नी को देखा, और उनको वो पसंद आई। तो वो अभी उनको कैसे प्राप्त करे, उनको प्राप्त करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। तो एक दिन राजा नहुष, जो उनसे अहंकार हो गया, और उन्होंने बहुत सारे ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और बोला मेरी पालकी को तुम लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? शची देवी के महल में लेके जाना है। तो राजा नहुष ने पालकी को उनको उठाने को बोला, ऋषि मुनियों को। सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उसमें थे, और वो उनको पालकी को उठाने लगे और जाने लगे। अभी ऋषि मुनि हैं, उनको पालकी ले जाने की आदत तो नहीं है, वो पालकी के लिए नहीं है, वो तो बड़े ब्राह्मण हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, वो पालकी नहीं लेके जा सकते। तो वो धीरे धीरे जा रहे हैं, और नहुष राजा को गुस्सा आया। वो उनको मारने लगा और कहने लगा जल्दी जल्दी चलो। संस्कृत में बोलते हैं सर्प सर्प करने लगा वो। और भी ऋषि मुनि तो नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने सामने अगस्त्य मुनि थे, उनको लात से मारा। जल्दी चलो, जल्दी करो, सर्प सर्प बोलने लगा। तो अगस्त्य मुनि को बहुत गुस्सा आया कि ये राजा, तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, तुम ये गलत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ। शाप क्या दिया उन्होंने कि तुम इस लोक से, स्वर्गलोक से नीचे गिर जाओगे और पृथ्वी लोक पे जाएंगे, और तुम्हारा जो शरीर है वो बड़ा एक सर्प सर्प कहते हैं ना, तुम अजगर के रूप में हो जाएंगे। बड़ा एक अजगर होगा, 10,000 वर्षों तक, 10,000 years विल बिकम पाइथन। 10,000 वर्षों तक तुम अजगर बन जाओगे। लेकिन उस शाप यह है, मतलब शाप का परिमार्जन यह है कि अगर तुम्हें ऐसा व्यक्ति कोई मिलेगा जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा, सही सही उत्तर देगा, तो तुम इस शाप से मुक्ति मिलेगी। और शाप के दौरान तुम्हारी जो शक्ति, सामने वाले की जो शत्रु की शक्ति है, जिसको भी तुम जकड़ोगे पकड़ोगे, उसकी सारी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। तो नहुष राजा ने सोच लिया मैंने क्या कर दिया, ये ऋषि मुनि को मैंने लात मारी। तुरंत ही वो नीचे आ गए, अजगर के रूप में पड़े रहे। जब भी पांडव जब भी वनवास में थे, तभी वो जंगल से गुजर रहे थे, तो भीम को उस अजगर ने पकड़ लिया। तो भीम की शक्ति पता है आपको सबको, 10,000 जो हाथी का बल है उसके पास, वो तो एक अजगर को आराम से छुटकारा पा सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन भीम की सारी शक्ति उस नहुष राजा जो अजगर रूप में थे उन्होंने ले ली,
और सारी शक्ति जाने के बाद भीम कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरे जो पांडव है, दूसरे उनके बंधु है, युधिष्ठिर जी है या अर्जुन है, वो सारे ढूंढने निकले और भीम कहाँ गया। तो युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो अजगर है उन्होंने भीम को पकड़ लिया है। तो अजगर ने पूछा कि भाई तुम मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दोगे तो मैं इसको छुड़ाऊंगा। और बहुत सारे उन्होंने प्रश्न पूछे नहुष राजा ने, जो अजगर के रूप में है उन्होंने। और युधिष्ठिर तो धर्मवीर है, धर्म का पालन करने वाले, उन्होंने सब अच्छे उनको जवाब दिए, ठीक ठाक जवाब दिए। और उसके कारण उसकी उस योनि से मुक्ति हुई। तो क्षत्रिय जो धर्म है उसे वो भी है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। दुर्योधन को जो अहंकार हुआ उसके लिए तो युद्ध के लिए तैयार हुए ना वो। भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनको संधि के लिए गए थे, तभी वो नहीं माने कि भाई उनको छोटे से 5 घाव दे दो पांडव जी को। और पांडवों को 5 घाव देने से आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनका अहंकार इतना था दुर्योधन का कि एक सुई की नोक के ऊपर भी जो जमीन है वो भी मैं दूंगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भगवान को ये निर्णय लेना पड़ा कि वो युद्ध में अर्जुन को तैयार करे कि भाई मेरी इच्छा है, अभी तुम युद्ध के लिए तैयार हो, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, इज नो डाउट अबाउट इट। तो जो स्वधर्म है, क्षत्रियो का स्वधर्म है क्या है? युद्ध करना, और युद्ध से भागना नहीं, नीचे चुप के बैठना नहीं है, सामने शत्रु है उसका, उसके साथ लड़ना है, युद्ध करना है उसके साथ। 2.31 में भगवत गीता कहता है कि स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। और जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, और देहात्म बुद्धि में वो नहीं रहता। जो बुद्ध हमारा देहात्म बुद्धि रहती है ना कि मेरा शरीर, मैं ये वो, मेरा है, मेरा राज, वो बुद्धि चली जाती है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य है, मतलब करना ही है उनको। तो अर्जुन की दयाद्र बुद्धि जागृत हो गई है कि मैं इसे कैसे युद्ध करूं, मैं कैसे मारूं उनको। उनकी दया भाव जागृत हो गया, क्योंकि अर्जुन एक बहुत ही अच्छा एक भक्त है, अच्छा इंसान है। इसीलिए दया करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं दया करना चाहिए, उसके ऊपर दया करना चाहिए। तो उसकी दया बुद्धि जागृत हुई तो वो इसके लिए बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसके लिए वो बोलते हैं हे प्रजापति कृष्ण मुझे इस युद्ध से बचा दो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो ये अर्जुन की स्थिति हो गई। तो ये द्विधा मनस्थिति में अर्जुन कहता है कि मुझे पाप लगेगा, और ये सारे संबंधियों है, सगे वाले हैं, मेरे गुरु है मेरे, उनकी वृत्ति का मैं कारण बनूंगा। यह सब उसके मन की बात है, क्योंकि वो भगवान उससे भी गाइड कर रहे हैं, उसको गाइडेंस। भगवत गीता एक गाइडेंस मैनुअल है हमारे लिए। जैसे कोई भी एक मशीन ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, मैनुअल आता है। मैनुअल में क्या दिया है, क्या क्या करना चाहिए, 1 2 3 4 3 5 6, ये स्टेप्स में अगर करना चाहिए। वैसे ही भगवत गीता में अगर हम लोग पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक जाएंगे तो हमारे लिए गाइडेंस है, बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। जीवन में कई अलग अलग परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम बचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड ले लो, कोविड-19 की परिस्थिति, अभी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, सब लोग कुछ ना कुछ तरीके से हम लोग बचना चाहते हैं। तो भगवान हमें गाइडेंस देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, हमें उसको पालन करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि जो हमारा मन है वो सारे बंधन का कारण है। वो विषयों का कारण क्या है? मन है। वो सारी मन से ही सारे निर्माण होते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। सारे बंधन है वो मन से निर्माण होते हैं। और बंधाय विषय संगो मुक्त निर्विषयम मन, निर्विषयम, निर्विषयम अगर रहेगा मन तो हम लोग उससे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका अर्थ है मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषय में लीन बंधन का कारण है, एक नंबर 1। इंद्रिय विषय में लीन बंधन का कारण है नंबर 1। और नंबर 2, विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। मतलब अभी अर्जुन की स्थिति देखिए, विषय में है, विषय में कैसे है कि मेरे सगे संबंधी है, मैं उनको मांगूंगा तो पाप लगेगा, उस अटैचमेंट हो गई उनको। विषय मतलब क्या है? विषय मतलब लगाव है, अटैचमेंट है, उनको अटैचमेंट हो गया है।
उनका मन अपने सगे संबंधी या गुरुजन, सारे परिवार के लोग हैं, उनको मारने के लिए तैयार नहीं। तो वो विश्व से विरक्त नहीं हो रहे, मन अटैच हुआ है, उसको डिटैच कर रहे हैं भगवान। आगे एक एक श्लोक देखेंगे तो भगवान कैसे उनको एक एक बताते हैं, कार्य के बारे में, कर्म के बारे में, ध्यान योग के बारे में। तो एक एक योग के बारे में बताते जाते हैं। और 11वें अध्याय में जाके जब भी अपना वो स्वरूप दिखाते, विश्वरूप दर्शन करते हैं, तभी अर्जुन जान पाते कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये विषय से विरक्त मन वो मोक्ष का कारण है, वो बताते हैं। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। इसमें बहुत शब्दों पे ध्यान दीजिए। जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। हम लोग बोलते हैं हम लोग भक्त है, कृष्ण के भक्त है, हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन हमारा मन भटक रहता है क्योंकि हमारा मन चंचल है, चंचल ही हमारा कृष्ण। तो ये चंचल मन को हमारे काबू में नहीं रहता है। अर्जुन की मन की स्थिति ऐसी ही हुई है ना, चंचल हो गया उसका मन। तो निरंतर कृष्ण भावनामृत में रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सदैव कृष्ण को याद करना चाहिए। अभी ये जो महीना दिया है, पुरुषोत्तम मंथ हम लोग के लिए दिया है, भगवान ने खुद दिया है, उसमें और भी हमें भक्ति बढ़ाना। लेकिन हमारा मन कई दूसरों विषयों में लगा रहता है। जो हमारा मन भौतिक विषयों में ज्यादा अटक जाता है, भौतिक विषयों के बारे में ज्यादा सोचता है, ये इसके बारे में क्या होगा, ये परिस्थिति ऐसी ही रहेगी क्या, 2 साल में हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, कोविड में हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, किससे नहीं मिल पाएंगे, हमारे संबंधियों से नहीं मिल पाएंगे। तो हमारा मन, और भगवान ने ऐसी दे दी कि ये परिस्थिति हम लोग और भी अध्यात्म में घुसने चाहिए, भगवत गीता में जानी चाहिए, भागवतम का श्लोक पढ़ने चाहिए। एटलीस्ट एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं ना घर में, कोई ना कोई। सबको तो ऑफिस में जाना नहीं है, कभी किसी को वर्क फ्रॉम होम है, किसी को डेली डेली नहीं जाना है, किसी को अल्टरनेट डे जाना है, तो वो उसका हमें फायदा लेना चाहिए। तो वो समय जो है हमें यूज करना चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में हमें निरंतर ले जा सकते हैं। तो निरंतर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह परम मुक्ति का कारण है। परम मुक्ति मतलब क्या? कृष्ण धाम को जाना। हम लोग मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति की अपेक्षा नहीं चाहिए, लेकिन हमें सोचना चाहिए हमें कृष्ण की सेवा में हम लोग कैसे जा सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि अ, अपने कार्य में कोई अपना नुकसान या फायदा हमें नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, उनका जो एक प्रवचन हुआ था, उसमें कहते हैं अगर कृष्ण की इच्छा है तो मुझे यह करना ही है, बस यही, नो डाउट अबाउट इट। कृष्ण की इच्छा है तो मुझे ये काम करना ही है। इसमें कोई भी वैयक्तिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। पर्सनल गेन, लाभालाभ जो है, जो हम बोलते हैं ना, लाभ यह होगा या अलाभ होगा, जय होगा या पराजय होगा, मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, ये हमें सोचना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें हमारी कोई भी वैयक्तिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, और यही सच्चा कृष्ण भावनामृत है। सच्चा कृष्ण भावनामृत क्या है? कि यही है कि हमारी कोई भी वैयक्तिक इच्छा नहीं है, होनी नहीं चाहिए, कि ये जो सारी इच्छा है कृष्ण के लिए होनी चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति बोले, हे कृष्ण, तुम मुझसे अभी यह करने के लिए कह रहे हो, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है, मुझे दूसरा कोई कार्य दे दो। अभी कभी कभी क्या होता है, किसी को अ, भगवान का मंदिर लीजिए, भगवान के मंदिर में जो सेवाधारी है उनको कोई के अलग अलग सेवा दी, तुम्हें चप्पल रखने की सेवा करनी है, तुम्हें प्रसादम बनाने की सेवा करनी है, तुम्हें आरती की सेवा करनी है, तुम्हें भोग की सेवा करनी है। तो किसी के मन में आता है, अरे मुझे चप्पल रखने के लिए कहा है, ये क्या सेवा हुई? हे कृष्ण, तुम मुझे ये कैसी सेवा दे रहे हो? उसका विचार मत करो। जो सेवा अपने लिए आई है वो करो। जैसे कि आईसी हॉल में, माता जी तो जानती है, अभी कन्या माता जी गिरगिरधारी प्रभु कि बहुत सारी सेवाएं हैं जो अलॉट किए जाती है, तुम ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। तो कभी कभी जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे लगता है, अरे ये क्या मुझे सेवा दे रहे हैं, मुझे ये बैग उठाने के लिए कह रहे हैं, मुझे वो पानी देने के लिए कह रहे हैं, मुझे भोग लगाने के लिए कह रहे हैं, ये कोई सेवा है? मेरे लिए कोई अच्छी सेवा नहीं है। उसका विचार मत तुम करो। सच्चा कृष्ण भावनामृत क्या है? ये कृष्णा की इच्छा है, ये सोच कर कृष्णा ने मुझे आज ये सेवा दी, इसीलिए आप सोचो। तो ये मत बोलो कि ये कि भगवान मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मुझे दूसरा कार्य दो।
अर्जुन कहेगा क्या, मुझे युद्ध नहीं करना है भगवान, मुझे दूसरा कार्य दो, मैं कुछ खेती बीती करूंगा, ब्राह्मण जैसा काम करूंगा या फिर शूद्र जैसा काम करूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा मैं, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के इच्छा विरुद्ध है। अभी ये जो श्लोक में है कहते हैं 2.38 में भगवान क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है और यही कृष्ण भावना है। ये हमें सोचना चाहिए। कृष्णा सेज द इसेंस ऑफ भगवत गीता, कृष्णा इसेंस ऑफ भगवत गीता में कहते हैं अ पर्सन हु प्रीचेस दिस सबलाइम मैसेज ऑफ भगवत गीता इज माय डियर मोस्ट फ्रेंड इन द ह्यूमन सोसाइटी। यह कृष्ण का आदेश है और यह आदेश हमें मानना है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मध्य लीला में 7.128 में कहते हैं, जो सबको पता है ये कहते हैं, हमारा आज्ञा गुरु अनातारा यही देश, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। हमारा आज्ञा क्या है, बस ये कृष्ण का उपदेश सारे जगत में फैला दो, ये कृष्ण का उपदेश सारे सबको बता दो। क्या है, यारे देखा तारे का कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है, भगवद गीता भागवतम, उसका प्रचार करो। प्रभुपाद कहते हैं टेक माई ऑर्डर एंड यू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके प्रवचन में दिस इज टेक माई ऑर्डर एंड यू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर। हाउ, वो कहते हैं सिंपली स्पीक कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान का जो मैसेज है, संदेश है, वो सबके 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 लिए फैलाओ, ये मेरी आज्ञा है। दैट्स ऑल। सिंपली स्पीक ऑन कृष्णाज मैसेज, कृष्णा कथास, कृष्ण के बारे में कहो, और कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं। वन इज द भगवद गीता, द अदर इज श्रीमद भागवतम। सो दिस इज द प्रोपगेशन एंड रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने प्रवचन में कहा है कि दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ये हमें करना है। एंड जो भगवान का आदेश है उनका पालन करना है। वी हैव टू अबाइड बाय द स्पिरिचुअल ऑर्डर्स without consideration of our personal gain or loss. This is Krishna consciousness. तो अभी अर्जुन की स्थिति क्या है, कृष्णा कॉन्शियस मतलब कृष्णा उनको आदेश दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। उठो परम तप, तुम्हारा जो शौर्य है, उनका उनका जो बल है, उनको याद करा रहे हैं भगवान। और उस याद करने से ही उनको पता है कि कृष्ण को पता है कि वो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होगा, और इस युद्ध में लाभ और हानि का याद मत रखो। जय पराजय को मत सोचो कि मेरा पराजय हो जाऊं तो मैं क्या करूं, भीख मांगना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। उसके लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं। अगर आप यह मानते हैं तो कोई प्रतिक्रिया, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, प्रभुपाद जी कहते हैं। और अगर आप अपनी मर्जी से कार्य करते हैं तो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होगी, जिसका वो फल होगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा, आप बांधे बंधे जाएंगे। अगर आप अच्छे कार्य करते हो या फिर बुरे कार्य करते हो, जैसे गुड वर्क गुड रिजल्ट, बैड वर्क बैड रिजल्ट, वैसे ही परिणाम होगा। तो वही भौतिक परिणाम की आप चिंता मत करो। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, द इफेक्ट ऑफ पायस एक्टिविटी इज दैट यू कैन गेट बर्थ इन अ रिस्पेक्टेबल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और गेट वेरी नाइस वेल्दी पोजिशन, और कैन बिकम वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हो जाएंगे, एंड यू कैन बिकम वेरी लर्नेड, ज्ञानवान हो गए। और अगर आप अपोजिट करेंगे, विरुद्ध करेंगे, तो क्या होगा, यू टेक योर बर्थ इन अबोमिनेबल, जो घिनौना फैमिली में लेंगे, और इन लोअर डिग्रेडेड एनिमल स्पेशीज ऑफ लाइफ, विदाउट एजुकेशन, नो ब्यूटी, नो नॉलेज। तो ये अगर विरुद्ध काम करेंगे तो होता है। इसीलिए तो कृष्ण भावना में व्यक्ति को पवित्र और अपवित्र कार्य में रस नहीं होता है। लेकिन वह अगर कृष्ण भावना भावित होता है तो उनके जो सारे कार्य है अपने आप पवित्र और दिव्य होते हैं, क्योंकि जो उनकी एक्टिविटीज है, कार्य है, वो पायस होते हैं, ट्रांसडेंटल, दिव्य होते हैं, और ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और ही हैजंट गॉट टू ट्राई सेपरेटली, उनको सेपरेट के लिए कार्य करने के लिए जरूरत नहीं है, ट्राई करने के लिए जरूरत नहीं। भागवतम में 5.18.12 में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है।
जिसमें हम लोग मेडिटेट करना चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सूराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मथो रतेनासति धावतो बहि। इसका मतलब है all the demigods and their exalted qualities such as religion, knowledge and renunciation become manifest, automatic manifest हो जाते हैं in the body of one who has developed unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead. प्रभु जी माता जी याद रखो, unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead 5.18.12 है प्रभु जी, 5.18.12 the unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead वासुदेवा। So हम लोग बोलते हैं ना पुरुषोत्तम मास में क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead. On the other hand, a person devoid of devotional service, engaged in material activities, has no good qualities. अगर आप भौतिक काम में पूरे दिन बिजी रहेंगे, भगवान की कुछ भी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? तो वो कहते हैं इट इज नॉट गुड क्वालिटीज। इवन द पर्सन इफ ही इज एडेप्ट, मतलब वो निपुण है अपने काम में, एक्सपर्ट है at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must engage in the service of Lord's external energy. How can those be any good qualities in such a man? ये वर्ष में जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में बताया। तो हमें सोचना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अभी अर्जुन का उदाहरण लेते हुए हमें सोचना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना हम कौन है। जो पुरुषोत्तम योग है 15.15 अध्याय उसमें 15.7 में दिया है, ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो हमारा जीव, हम लोग क्या है, ममे वंश जीवलोके, हम कृष्ण के अंश है और हमारा जो प्रकृति ने हमें बांध के दिया है। तो लिविंग एंटिटीज इन कंडीशनल वर्ल्ड आर माय एटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स, छोटे छोटे अंश है बेसिकली। और इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। शाश्वत अंश है वो, भगवान कहते शाश्वत अंश है, सनातन कहते हैं, शाश्वत है। बद्ध जीव जीवन के कारण वे छठों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, फाइटिंग। जो बद्ध जीव क्या कर रहे हैं, संघर्ष, इस जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और जिसमें जो मन है सम्मिलित है, इंक्लूड है। कौन से 5 इंद्रिय हमारे, आई ईयर नोज टंग स्किन और माइंड, माइंड माने मन। और प्रकृति के हम 3 गुणों से बद्ध हो चुके हैं। जो 3 गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो अर्जुन की स्थिति में अब वो सत्व गुण में नहीं है, वो रजोगुण में है। क्यों? क्योंकि वो अटैच हुआ है। किससे अटैच हुआ है? किससे अटैच हुआ है? अपने गुरुजनों से, भाई बंधुओं से और सकल कौरव जनों से, कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप रहेगा, मुझे युद्ध से बचाओ। अगर मैं मारा जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं। तो ये उसकी स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं भगवान। और इसीलिए ये जो भगवान जो अध्याय है, गीता का सार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की स्थिति बहुत ही दोलायमान रहती है, द्विधा रहती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन के जो छोटे छोटे कार्य है जिसमें हमें हमारा दिल टूट जाता है और हम कभी डिस्करेज होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वह कार्य जैसा नहीं बनता हम वैसा चाहते हैं। हम उत्साहित नहीं रहते, अनुत्साहित रहते हैं, हतोत्साहित रहते हैं। और सच है कि हमारे जो सीमित इंद्रियों है, जो हमारी इंद्रिय है, से हमें कभी भी यह निर्णय नहीं ले पाते कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। अभी हमारे पास हमारे रिलेटिव है, अभी मोबाइल भी अवेलेबल है, हम मोबाइल से बात करते हैं, हमारे रिलेटिव से बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अगर हम वही भगवान के पास जाए, उनके पास बताए हमारे प्रॉब्लम से, या उनको प्रणाम करें कि उनकी दया से हमें कुछ बुद्धि मिले और इस जो प्रॉब्लम्स हैं हम उससे निकल सकते हैं। इसीलिए हमें संयम से थोड़ा रुकना चाहिए और हमें भगवान का मार्गदर्शन लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए।
बहुत सारी परिस्थितियों में हमें अपने मुसीबतों का सामना खुद को ही करना पड़ता है, किसी को बोल भी नहीं सकते, हमें खुद को अपना मुसीबत को सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में हमेशा वास करते हैं और वो हमें मार्गदर्शन यानी हमें गाइडेंस देते हैं। लेकिन हम अध्यात्म रूप से अंधे हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज हमारी कम पड़ती है और हम जो कर्टन है वो आता है हमारी आंखों के ऊपर और हम जान नहीं पाते हैं, और जान नहीं पाते हैं तो हम उनका भगवान का मार्गदर्शन नहीं ले पाते हैं। अर्जुन की स्थिति में ऐसा है, जो कर्टन है युद्ध के शुरुआत में वो आ गया है, भगवान उस कर्टन को धीरे 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 निकाल रहे हैं और उसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कलयुग में हम देखते हैं कि भौतिक जगत के हर व्यक्ति किसी न किसी कारण पीड़ित है। सफरिंग्स आर देयर फॉर एवरीबॉडी, कुछ ना कुछ सफरिंग रहती है। प्रकृति की तकलीफ होती है, कुछ पैसों की तकलीफ होती है, कुछ भी रहती है, भौतिक स्थिति ऐसी होती है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पीड़ित है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कोई पीड़ा, दुख या तकलीफ नहीं। कलयुग की स्थिति ऐसी है। तो वास्तव में भगवान के भक्तों ने जो तकलीफें उठाई है, जैसे कि ध्रुवा महाराज है, प्रहलाद महाराज है, गोपाज है, गोपीज है, बहुत सारे भक्त है उनके, जो उन्होंने तकलीफ उठाई है। प्रभुपाद जी लीजिए, कितनी तकलीफें उठा के वो चले गए अमेरिका में। 3-3 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा, धीर नहीं छोड़ा। उन्होंने तय कर लिया, भगवान की प्रार्थना की कि मुझे पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो बहुत सारे भक्तों ने ये तकलीफ उठाई है और उनके सामने हमारी तकलीफें क्या है? हमारी तकलीफें कुछ नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए, अगर तकलीफें कुछ आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें संयम नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तकलीफ हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बट वी फाइंड आवरसेल्फ मोर मिजरेबल व्हेन वी फेस ट्रबल्स, whereas the devotees of the Lord are always blissful. सदैव ब्लिसफुल रहते हैं, आनंद रहते हैं, परमानंद में रहते हैं, तकलीफ की चिंता नहीं करते हैं। प्रभुपाद परपट में कहते हैं, 3.13.17 के परपट में कहते हैं, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड who are all confidential servitors are sometimes perplexed in the discharge of their respective duties. कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन की स्थिति अभी परप्लेक्स हुई है, कंफ्यूज हो गई है, युद्ध कैसे करना है वो सोच रहे हैं, युद्ध करूं या नहीं करूं, क्या होगा, जय होगा पराजय होगा, क्या होगा, वो परप्लेक्स्ड है, बट दे आर नेवर डिस्करेज्ड। जो भक्त है दे आर नेवर डिस्करेज्ड। प्रभुपाद जी कहते हैं, दे हैव फुल फेथ इन द लॉर्ड। भगवान में पूरी उनकी पूरी श्रद्धा है, फुल फेथ इन द लॉर्ड, एंड ही पेव्स द वे फॉर द स्मूथ प्रोग्रेस ऑफ द डिवोशनल डिवोटीज ड्यूटी। वो रास्ता दिखाते हैं। हमारे कर्तव्य करने के लिए हमारे लिए कौन रास्ता दिखाते हैं? भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। वो हमें सोचना है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ डिफिकल्टीज में है, कुछ तकलीफे में है, तो जो हमारा जो मार्गदर्शक कौन है? इसीलिए भगवान गुरु भेजते हैं। गुरु के थ्रू हमें मार्गदर्शन मिलता है। हमें गुरु को भी प्रे करेंगे, भगवान को प्रे करेंगे, तो हमें जरूर एक मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हम तकलीफ जो रहती है उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वी नाइदर सीक द डायरेक्शंस ऑफ द लॉर्ड। दूसरी जगह हम क्या सोचते हैं? हम लोग भगवान का जो इच्छा है उनकी तरफ नहीं देखते हैं। एंड इवन इफ वी सीक हिज हेल्प, अगर हम उनकी मदद भी लेना चाहते हैं, वी आर नॉट रेडी टू वेट पेशेंटली फॉर हिज इंस्ट्रक्शंस। वी आर नॉट रेडी टू टेक हिज इंस्ट्रक्शंस पेशेंटली। जो संयम है, जो धीरज है, वो हमें लेना चाहिए। अर्जुन का पेशेंस छूट रहा है यहाँ पे, और भगवान उनको गाइड कर रहे हैं कि भाभी ऐसा जाके तुम्हें युद्ध करना ही है, और याद दिला रहे परम तप करके, उत्तिष्ठ परम तप कह रहे हैं उसको। तो उन्हें उठना है, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमें इससे जो श्लोक दिए हैं उससे हमें क्या लेसन लेना चाहिए? वी ऑलवेज नीड टू बी हम्बली सरेंडर unto the Lord's feet with faith and patience
and abide by his directions. मैं फिर से दोहराता हूँ, ये जो 3 श्लोका है या फिर गीता का जो सार है, कोई भी श्लोक ले लो उसमें, जो अध्याय का, इसमें हमें क्या लेना चाहिए? We always need to humbly surrender unto the Lord's feet. जो कृष्ण के पद कमल है, उसमें हमें शरणागति प्राप्त करनी है विथ फुल फेथ एंड पेशेंस. संयम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए. आदौ श्रद्धा, ये तो स्टार्टिंग है ना. आदौ श्रद्धा मतलब पहले से श्रद्धा निर्माण होने के बाद ही तुम आगे बढ़ सकते हो ना. एंड अबाइड बाय इंस्ट्रक्शंस, प्रभुपाद जी ने जो उनकी आज्ञा है उनका पालन करो. प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो अगर आज्ञा का पालन हम लोग करेंगे तो ही हम लोग आगे कृष्ण भावना मूर्ति पर जा सकते. एक छोटी सी कथा है, मैं 2 मिनट लूंगा प्रभु जी. इसमें एक राजा था, बहुत उनका साम्राज्य बड़ा था. उनको एक पुत्र हुआ. पुत्र बड़ा हुआ, 4-5 साल का हुआ, छोटा सा पुत्र था. उनको रानी उनको प्यार करती थी, उनकी माँ जो प्यार करती थी. राजा भी बहुत प्रेम करता था, बहुत अच्छा था, भागता था यहाँ वहाँ. तो राजा को लगा ये उनके, रानी ने बताया उनके पाँव इतने कोमल है, जो बाहर जाएगा तो उसको कांटा लग जाएगा, मट्टी में जाएगा तो कांटा लगेगा, कुछ चुभेगा उसको पैर को, तो उसके हमें संभालना चाहिए. तो राजा ने क्या किया, वो जहाँ जहाँ जाता था वहां पे चमड़ा जो रहता है वो बिछाता था, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से, कुछ गद्दी डालता था, कुछ ये डालता था, चमड़ा डालता था. सारे राज्य में उसने ऐसा कर दिया, जहाँ भी जाएगा उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके पैर, वो कांटा नहीं छूटना चाहिए. ये प्रजा, जो उनकी प्रजा है वो हैरान हो गई है, राजा ये क्या कर रहे हैं, सब जगह तो अगर चमड़ा डालेगा तो क्या होगा, तो गलत है. तो ना ब्राह्मण लोग भी अचंभित हो गए, चमड़ा देके कैसे करेंगे हम लोग काम. तो उसमें से एक व्यक्ति था, वो होशियार था. राजा को बोला कि ये सब जगह चमड़ा डालने की क्या जरूरत है, उसके पैर में एक छोटी सी चमड़े की चप्पल पहना दो. तो ये जो स्थिति राजा की हुई है और रानी की, वो सोच नहीं पा रहे कि अपनी जो अटैचमेंट है पुत्र के लिए, वो कुछ करना चाहते थे और कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए कि समझदारी किसमें है. कोई जो ऐसा जो व्यक्ति है जो समझदार है वो यूँ गाइडेंस कर रहे हैं. और हमारे ये समझदार व्यक्ति कौन है? हमारे गुरु महाराज है, जो सीनियर डिवोटीज है, वो हमारे समझदार व्यक्ति है. उनसे हमें आज्ञा लेनी चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए. हम लोग क्या कर पाते हैं, कैसे इस समस्या से हम लोग निकल सकते हैं, वो सोचना चाहिए. अभी अर्जुन को इस समस्या से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान उनको गाइड कर रहे हैं और इस गाइडेंस से उनको बता रहे हैं युद्ध के लिए तैयार हो. तो ये हमें जो लेसन है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि वी ऑलवेज नीड टू हम्बली सरेंडर. बहुत ही नम्रता पूर्वक हमें शरणागति लेनी चाहिए. और जो नॉट्स फिट, जो कृष्ण का पद कमल है उनको पकड़ना चाहिए. गुरु के पद को, गुरु की धोती, प्रभुपाद जी की धोती है, उनको पकड़ना चाहिए. और पेशेंस रखने चाहिए, फेथ रखनी चाहिए. ये सारी चीज रहेंगे. और जो उनकी आज्ञा है वो बहुत महत्वपूर्ण है. जो उनकी आज्ञा है उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए. उस आज्ञा के पालन के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. तो शिष्टाष्टकम है, आप पढ़ सकते हैं. पुरुषोत्तम मास में हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जिसमें हमें जो आज्ञा दी है उसका हमें पालन करना चाहिए. अभी बहुत सारे अबीर कन्या माता जी ने बहुत सारे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब पढ़ी है. आप सब लोग पढ़िए. और सबको पता है अधिक मास में क्या करना चाहिए. हम लोग साइड में रखते हैं इसको, नहीं नहीं बाद में करेंगे, पहले हम लोग हमारी मटेरियल ड्यूटीज करेंगे. भौतिक कार्य को प्राधान्य देते हैं. और इस भौतिक कार्य को प्राधान्य देने में हमारा क्या होता है, समय निकल जाता है. पूरा महीना खत्म होने को आएगा, बाद में पता चला अरे हमने ये पढ़ा ही नहीं, मैंने ये पढ़ा नहीं. जगन्नाष्टकम है, बहुत सारे कुछ दिए हैं उन्होंने, माता जी ने बहुत सारे भी भेजे हैं. उसका हम लोग रेगुलरली पढ़ते रहिए. आपके पास नहीं रही कुछ कॉपीज लेके रखिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत भागवतम पढ़िए. और आदेशों का पालन कीजिए. भगवान ने जो आदेश दिए, गुरु ने जो आदेश दिए, उसका पालन हमें करना चाहिए. यस गिरिवरधरी प्रभु, कितना समय है हमारे पास? यहाँ प्रभु बताइए, कुछ 5 मिनट है करके. हाँ, आपको और कुछ कहना है तो बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. करंट
I think in India the electricity is gone, I believe. Prabhu lost his connection. Krishna. हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु, कनेक्शन निकल गया प्रभु। Yeah, Prabhu, no, bro, I could understand. I thought maybe electricity is gone. I thought. Yeah, Prabhu, if you हाँ want to say इसलिए, something more, you can say no problem. If you have, yeah. हमारे लिए थोड़ा समय है ना, 5-10 मिनट का प्रभु समय है ना। Yeah, no problem. Continue. हाँ। तो भगवत गीता से जो हम लोग का श्लोक है, आगे वाला जो श्लोक देखेंगे आप। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं ना? बोल Yeah, it's able to hear you, Prabhu. You're able. आ रहे Yeah. हैं ना? ओके। तो जो भगवत गीता का जो श्लोक है 2.38, जिसमें जो महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने बताई है, उसे हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या कहते हैं? कृष्ण भावनात्मृत का कार्य जो है कि हर जो हमारा कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, जो सारा कार्य कृष्ण के निमित्त के लिए किया जाए। और जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में के लिए कार्य करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। तो सत्वगुण और रजोगुण, उससे ऊपर भी हमें, सारे जो तीनों गुण हैं उससे ऊपर भी हमें आना चाहिए। उसके ऊपर जाके जो अति शुद्ध सत्वगुण है, शुद्ध सत्वगुण में आके हम अगर कार्य करते हैं, हम कृष्ण के पास जल्दी उनको कर सकते हैं, मतलब अचीव कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो उन्होंने जो वर्ष दिया है 11.5.41, हे वर्षिभूता प्रणुनाम पितॄणाम न किंकरोनाय मृणीम च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में वे, वो कहते हैं कि जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है, न किसी का कृतज्ञ है। ऋणी है मतलब आपने कुछ उधार लिया किसी का तो आप ऋणी हो जाते हैं, किसी में कुछ आप उधार नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने भगवान मुकुंद की शरण ले ली है। चाहे वो देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो अथवा परिजन हो, या मानव जाति, या उसके पितर ही क्यों न हो। इसीलिए वो अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली संकेत गाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हे अर्जुन, तुम युद्ध का जो परिणाम है उसके बारे में चिंता मत करो। तुम्हें विजय मिलनी है न मिलनी है इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति तो होने वाली है, क्योंकि तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। तो अर्जुन की द्विधा मनस्थिति को भगवान तोड़ रहे हैं और उसे ठीक समय, उसका जो माइंड है, उनका मन है, जो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, पूरी तरह युद्ध के लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसको मन को उसको खींच के ला रहे हैं। वो उनको कहते हैं तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे कटुता का कटु शब्दों में वर्णन करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेंगे, अरे ये तो कितना डर गया है, ये डरपोक है अर्जुन। तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, उसके पास कोई बल ही नहीं है बोलेंगे। तुम ऐसी चिंता, इससे चिंता मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ये बहुत ही तुम्हारे लिए दुखदायी होगा। अभी हमें बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं, कभी कभी हम लोग उसका पालन नहीं करते तो क्या हम लोग पाते हैं, दुख होता है मन को। अरे हम लोग ऐसा करना चाहिए था, किसी ने, कई सीनियर डिवोटी ने हमें बताया, अरे प्रभु तुम ऐसा करो। लेकिन हम लोग अगर बोलते हैं हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, हमें ऐसा करना चाहिए था, उल्टा करते हैं, तो बाद में क्या होता है, वो दुखदायी स्थिति प्राप्त होती है। इसीलिए वो जो दया भाव है, और इसीलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन के दया भाव के ऊपर आश्चर्य हुआ था कि भाई ये क्षत्रिय होकर दया की बुद्धि में क्यों आ रहा है। और उन्होंने कहा ये जो दया भाव तो अभी दिखा रहा है अपने गुरुजनों प्रति, कौरव प्रति, वो ये दया भाव
अनायोचित है, वो ठीक नहीं है। और इसीलिए वो विस्तार से भी कहते हैं कि ये दया भाव के विरुद्ध कहे गए और अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। इसलिए अपने वचनों को सिद्ध करो, ये दया भाव सब निकालो। युद्ध में तुम्हें दया वगैरह युद्ध नहीं करनी चाहिए। जो शत्रु है उसके ऊपर हमला करना है, हमला बोलना है। युद्ध का परिणाम मत सोचो, युद्ध के बारे में आगे जाएगा क्या होगा वो मत सोचो। और वो दया बुद्धि के लिए, इसके लिए भगवान प्रभुपाद जी कहते भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या करेंगे? तुम तो उपहास, तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारे लिए बोलेंगे तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम ये परम तप हो, धनुर्धारी हो, वो सब कुछ नहीं है। सब लोग उसका उपहास करेंगे। इसके लिए हे अर्जुन, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम उठो और युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करो, संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो हमारी स्थिति भी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हम लोग डबल माइंडेड होते हैं, दुविधा होती है। तभी हमें संकल्प, दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि गुरुजनों ने क्या कहा है, भगवान की क्या आज्ञा है, इसमें हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। और दृढ़ संकल्प से हमें उसे फाइट करना चाहिए और उस प्रॉब्लम जो भी समस्या है उसमें हम लोग निकल सकते हैं। तो हमें देखिए, जो भगवत गीता का जो पाठ है वो हमें जब ऐसे ही पढ़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके हर एक शब्द का उसे शब्दार्थ दिया है। उस शब्द में जाओ, शब्दों के अंदर घुस जाओ, उसका मीनिंग निकालो, उसको कोरिलेट करो, दूसरे वर्ष से भी कोरिलेट करो। दूसरा वर्ष उसके बारे में भागवतम में क्या कहता है, भागवतम का वर्ष दूसरे में क्या कहता है, उपनिषद के बारे में भी प्रभुपाद जी ने रेडीमेड दिया है। कौन से उपनिषद में क्या दिया है, वो कनेक्टेड है। वो उपनिषद में क्या मीनिंग दिया है उसका भी अर्थ दिया है प्रभुपाद जी ने। हमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सारे जो चीज है, जो शब्दार्थ है, भावार्थ है, उसका तात्पर्य है, जो ट्रांसलेशन है, उसमें सारी चीज प्रभुपाद जी ने हमें रेडीमेड दिए। बस हमें जस्ट ध्यान से हमें पढ़ेंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे या फिर किसी का गाइडेंस लेंगे। हमें समझता नहीं है, चलो भाई किसी को पूछ लेंगे, जो सीनियर ड्यूटी उसको पूछ सकते हैं हम लोग, उनको हम लोग पूछ के हम लोग उसका मीनिंग भी समझ सकते हैं। तो हमें अभी सोचना है कि अर्जुन की स्थिति से जैसे हमारी भी स्थिति हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। यस प्रभु जी, गिरिवर्धन प्रभु। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Very nice. Thank you very much. I took extra time, Prabhu. Sorry, Prabhu. No problem, Prabhu. That's good, Prabhu. And this month is some month today. Today is an auspicious day. Yes. Thank you very much for giving opportunity. And this is very auspicious month started. And on this month, in this month, you have given me the opportunity, Prabhu. Thank you very much, Prabhu ji. It's Krishna and Maharaj mercy, Prabhu, that you have been selected. It is not my selection. Yes, Krishna, thank you, Prabhu ji. Thank you, Manohar Prabhu ji, for your comments. Hare Krishna, Prabhuji. So, Mataji, anybody has any questions or any doubts? Prabhuji is there, he can clarify. Hare Krishna. Thank you, Simmi Mataji. Hare Krishna. Okay, Prabhu. Thank you very much. Okay, Prabhu. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for giving time. Thank you very much. Hare Krishna. So tomorrow we have Mangala 7:30. Please join. And Yes, Prabhu. okay, right. Thank you very much. Yes. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Prabhu.